डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जो हमारे सिलेबस में आयोनिक कंपाउंड्स है दैट इज ए बी टाइप आयोनिक कंपाउंड्स एंड ए बी टू टाइप आयोनिक कंपाउंड्स। ए बी टाइप आयोनिक कंपाउंड्स मीन्स जहां पे जो एनाइन और कैटाइन है दे आर इन द रेशियो ऑफ 1:1 एंड ए बी टू टाइप आयोनिक कंपाउंड्स मीन्स जहां पे जो रेशियो ऑफ एनाइन or ratio of cation, or we can say the ratio of oppositely charged ions, it is equal to 1:2 or 2:1। NaCl का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा था। नाउ आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ए बी टाइप हमने स्टार्ट किया था। ए बी टाइप में हमने पढ़ा था NaCl स्ट्रक्चर, और आज हम पढ़ेंगे CsCl स्ट्रक्चर। CsCl स्ट्रक्चर CsCl स्ट्रक्चर। अगर आपको याद होगा इन एनी आयोनिक कंपाउंड जो दो आयनों में से जिसका साइज ज्यादा होगा दैट विल फॉर्म द क्लोज पैकिंग। देन जो स्मॉलर आयनों होते हैं दे विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ लेट अस टेक दिस स्ट्रक्चर ऑफ CsCl इनटू द कंसीडरेशन। यहां पे जो Cl नेगेटिव आयन है इट फॉर्म्स द क्लोज पैकिंग, और जो C पॉजिटिव है Cs पॉजिटिव इट ऑक्यूपाइज द वॉइड। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर? जो Cl है Cl इट फॉर्म्स द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इट फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो Cs पॉजिटिव है, Cs पॉजिटिव इज it is present within the body of unit cell, within the body of unit cell, within the center of body of unit cell. It occupies the center of body of a unit cell. It is present at the center of unit cell. It is present at the center. जो सेंटर होता है फॉर दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्यूबिकल वॉइड। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। जो Cs पॉजिटिव है इट ऑक्यूपाइज द क्यूबिकल वॉइड और इट इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी ऑफ ए यूनिट सेल। दिस इज पॉइंट नंबर 2। नाउ थर्ड पॉइंट फिर हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। टोटल नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, number of Cl negative ions, it is simply calculated as if it forms the simple cubic unit cell, that means जो Cl negative ions होंगे they are present at the corners of a unit cell. There are 8 corners, contribution is 1/8, so it will be 1. Another is number of Cs positive ions in a unit cell. In a unit cell that is equal to 1 because it is present within the body of unit cell. इसका जो contribution होगा that will be 1 towards each unit cell. Now fourth point is जो यहां पे रेशियो है, रेशियो ऑफ Cs पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, रेशियो ऑफ Cs पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव दैट इज 1:1, which implies जो फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड होगा, formula of compound it will be CsCl. Another point, this will be the last point. Fifth point जो है it's about the coordination number. Now what is the coordination number? The number of oppositely charged ions that are in contact with a particular ion. यहां पे आप लिख सकते हैं Cs पॉजिटिव कितने Cl नेगेटिव ions के साथ in contact में होगा, that will be the coordination number of Cs positive. Number of Cl negative Cs positive ions in contact with a particular Cl negative ion, in contact with the Cl negative ion, that will be termed as the coordination number of Cl negative ion. जो यहां पे coordination number है, coordination number is simply 8:8. That means each Cs positive in the overall structure, जो एक Cs पॉजिटिव होगा इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद 8 Cl नेगेटिव आयंस एंड each Cl negative ion will be in contact with 8 Cs positive ions.
And last one is the example is chloridis, bromidis, and iodidis, cyanides of cesium and thallium. This is the example. This is the structure of CSCl structure. यहां से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Cl negative ion जो है they form the simple cubic unit cell. Thus this is the unit cell formed by the Cl negative ions. अगर आप देखेंगे within this unit cell there is a void that is termed as a cubical void. वो जो cubical void है it is occupied by the Cs positive ion. अगर आप देखेंगे that void or Cs positive ion it will be in contact with 8 Cl negative ions. That means इसका जो coordination number होगा that will be 8. Now another point, this point is very important. अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो आयन है that is Cl negative और इस कॉर्नर पे जो आयन है that is Cl negative. अगर आप यहां से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे थ्रू द सेंटर, फिर जो ये आयन है और जो आयन इन कॉन्टैक्ट विद दीज टू आयन्स होगा that is Cs positive ion. This Cl negative ion, this Cl negative ion and this Cs positive ion, they will be in contact along a body diagonal. अगर आप देखेंगे it will be like this. It is the structure of CSCl. इस आयन को आप रिप्रेजेंट करेंगे like this. यहां पे होगा Cs positive, यहां पे होगा Cl positive. Sorry, this is Cl negative, this is Cl negative. अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे it is actually a body diagonal. From this ion to this ion there will be the body diagonal. Along this body diagonal एक तो ये आयन होगा और Cs positive आयन होगा. This is Cs positive, this is Cl negative, this is Cl negative. Now what is the length of a body diagonal? अगर आपके पास कोई भी क्यूबिक शेप होती है, इसकी जो बॉडी डायगोनल है that is root 3a. Root 3a is the body diagonal. Root 3a that will be equal to, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, this portion will be r negative, that means the radius of anion. This is another r negative, that is radius of anion. You can write it 2 times r negative प्लस जो यहां पे Cs पॉजिटिव है इसकी ओवरऑल डायमीटर आती है, this is from this to this it will be diameter or it will be 2r. So you can write it like this, 2r positive. R positive is the radius of cation, r negative is the radius of anion. You can write it like this, root 3a. यहां से 2 को आप कॉमन निकालेंगे, it will be like this, r positive or r negative plus r positive. That will be root 3 divided by 2a. That is equal to r negative plus r positive. This question was asked in JEE Advanced, perhaps 2016 or 17. जो relationship है between the radius of cation and anion and the edge length, that is equal to root 3 by 2a. That will be equal to radius of cation plus radius of anion. अगर आपके पास कोई भी ionic compound है for which we have CSCl structure, if you know the edge length, if you know the radius of cation, you can calculate the radius of anion. Second point, अगर आपके पास radius of cation भी पता है, radius of anion भी पता है, you can calculate the edge length of that cube. This is the structure of CSCl. हमने structure of ionic compound स्टार्ट किया था. इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था this structure of NaCl. Then हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा that is the AB type ionic compound, that is CSCl. Now we will move to the third one. Third structure को पढ़ने से पहले let us see what is the effect of temperature and pressure on the coordination number. Effect of temperature and pressure on coordination number. Effect of temperature and pressure on
effect of temperature and pressure on coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बिकॉज जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे these ions will move close to one another and it will be inversely proportional to temperature, because जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ions will move away from one another. That means जो coordination number है that is directly proportional to the pressure and is inversely proportional to the temperature. इस कंसेप्ट को आप यहां पे अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव NaCl स्ट्रक्चर. NaCl स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 6:6. नाउ यहां पे CsCl स्ट्रक्चर है, CsCl स्ट्रक्चर, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 8:8. नाउ डू वन थिंग, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, जो NaCl स्ट्रक्चर है इट इज कन्वर्टेड इनटू CsCl. यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NaCl विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू CsCl, बिकॉज अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे या आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दैट विल नॉट चेंज द आयन्स इनटू वन अनदर. दैट इज इम्पॉसिबल. देयर इज सिंपली चेंज इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम NaCl टू CsCl. दैट मीन्स अगर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर था 6:6, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को आप इंक्रीज करेंगे इन दिस डायरेक्शन, जो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज सिंपली चेंजिंग और इट इज इंक्रीजिंग टू 8:8 फ्रॉम 6:6. नाउ डू अनदर थिंग, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इट चेंजेस फ्रॉम 8:8 टू 6:6. दैट मीन्स जो CsCl स्ट्रक्चर है इट चेंजेस टू NaCl स्ट्रक्चर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. पॉइंट नंबर सेकंड, जो NaCl स्ट्रक्चर है इट चेंजेस टू CsCl स्ट्रक्चर ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर. NaCl and CsCl, they are not interconverted into one another, but their structures are interconverted. That means CsCl structure is converted to NaCl structure and NaCl structure is converted into CsCl structure. This is CsCl, or we can say it is the AB type ionic compound. Now let's move to the second ionic compound. This is first, पहला हमने पढ़ा NaCl, second हमने पढ़ा CsCl. Now we will move to ZnS structure, जिंक सल्फेट स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले अगर आपको याद होगा, हमने एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज द लोकेशन ऑफ वॉइड्स. आपके पास जो FCC यूनिट सेल होते हैं, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दैट इज डबल द नंबर ऑफ Z इफेक्टिव. दैट मीन्स अगर आप FCC के लिए कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, दैट विल बी, जो FCC होता है हमारे पास, FCC फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका Z इफेक्टिव होगा दैट विल बी, एक तो कॉर्नर पे होंगे दैट इज 8 into 1/8 प्लस फेसेस पे होंगे दैट विल बी 6 into 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 4. दिस इज Z इफेक्टिव फॉर फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ अगर आपको याद होगा फॉर फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू 2n, दैट विल बी 2 into 4 दैट इज इक्वल टू 8. सिमिलरली जो आपके पास फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके लिए जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं दैट इज सिंपली इक्वल टू n. n यहां पे 4 है, दैट मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 4. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मींस जो आपके पास फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, इसमें जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दैट इज सिंपली इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू 8, और जो इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 4. नाउ लेट अस मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ ZnS. ZnS में जो S नेगेटिव आयन्स होते हैं दे फॉर्म द फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट FCC. दैट मीन्स जो S2 नेगेटिव आयन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, दे आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेज. नाउ जो स्मॉलर आयन्स होते हैं they are always occupying the voids. They can occupy tetrahedral voids, they can occupy the octahedral voids. But in this case, जो Zn positive ions होते हैं, they occupy alternate tetrahedral voids.
they occupy alternate tetrahedral voids. They occupy alternate tetrahedral voids. फिर हम थर्ड पॉइंट पढ़ते थे. थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव फॉर S2 नेगेटिव, कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव फॉर Zn2 पॉजिटिव. Now number of S2 negative ions per unit cell. हर एक यूनिट सेल में जो S2 नेगेटिव आयन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू, इट इज FCC अरेंजमेंट. इसके लिए हमने बहुत बार Z इफेक्टिव कैलकुलेट किया है. दैट इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन्स per unit cell. That is equal to alternate tetrahedral voids are occupied. There will be 8 tetrahedral voids. When alternate tetrahedral voids are occupied, that means 4 tetrahedral voids will be occupied. Now fourth point, ratio of Zn2 positive to and S2 negative, that is equal to 4:4. That is equal to 1:1. Which means जो इसके लिए फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, दैट विल बी ZnS. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. इसके बाद जो हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ते थे, दैट इज इक्वल टू दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. एक Zn2 पॉजिटिव आयन कितने S2 नेगेटिव आयन्स के साथ इन कांटेक्ट होगा, दैट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव. सिमिलरली एक S2 नेगेटिव आयन कितने Zn2 पॉजिटिव आयन्स के साथ इन कांटेक्ट में होगा, दैट विल बी इट Z इफेक्टिव, सॉरी दैट विल बी इट कोऑर्डिनेशन नंबर. फिफ्थ वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर. जो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट विल बी 4:4. दैट मीन्स ईच Zn2 पॉजिटिव आयन इज इन कांटेक्ट विद 4 S2 नेगेटिव आयन्स एंड ईच S2 नेगेटिव आयन इज इन कांटेक्ट विद 4 Zn2 पॉजिटिव आयन्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ZnS. AB टाइप स्ट्रक्चर में हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा दैट इज NaCl स्ट्रक्चर, सेकंड इज CsCl स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज ZnS स्ट्रक्चर. नाउ लेट अस मूव टू द AB2 टाइप आयोनिक कंपाउंड्स. जो AB2 टाइप आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, AB2 टाइप आयोनिक कंपाउंड्स, वहां पे जो रेशियो ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 1:2 और 2:1. So जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक विल बी AB2 टाइप और, या इनको आप AB2 टाइप कहेंगे, सॉरी यू कैन राइट इट एज AB2 टाइप आयोनिक कंपाउंड्स और A2B टाइप और A2B टाइप आयोनिक कंपाउंड्स. इसमें जो पहला है दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 स्ट्रक्चर. नाउ जो हमने बाकी टॉपिक्स पढ़े रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट एज कंपेयर टू दैट. अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो Ca2 पॉजिटिव आयन है, इट हैज मोर साइज देन नेगेटिव आयन. एज ए रिजल्ट यहां पे एनायन क्लोज पैकिंग नहीं बनाएगा, बट कैटायन विल फॉर्म द क्लोज पैकिंग बिकॉज ऑफ लार्जर साइज. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपके पास कोई भी आयोनिक कंपाउंड है जो क्लोज पैकिंग है दैट इज फॉर्म्ड बाय द आयन दैट इज लार्जर इन साइज. बट यूजुअली अगर आप देखेंगे जो एनायन्स होते हैं दे आर ऑफ लार्जर साइज, बट इन दिस केस कैटायन इज ऑफ लार्जर साइज. एज अ रिजल्ट कैटायन Ca2 पॉजिटिव आयन विल फॉर्म द क्लोज पैकिंग, और जो इसमें एनायन है दैट इज F नेगेटिव आयन, they will occupy the voids. Now point number first with this, जो यहाँ पे Ca2 positive ion है, Ca2 positive ions form the FCCr CCP, forms FCCr cubic close packing arrangement. FCCr CCP arrangement. Second, जो F negative ions होते हैं they occupy all tetrahedral voids.
जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दे आर ऑक्यूपाइड बाय द F नेगेटिव आयन. Ca2 पॉजिटिव आयन फॉर्म्स द FCC. दैट मीन जो इसमें नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयन्स होंगे दैट विल बी 4. अगर आपको याद होगा अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा दैट इज द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन FCC. That is simply equal to double the number of atoms in the close packing. Total number of Na2 positive ion, Ca2 positive ion will be 4. So number of tetrahedral voids will be 8. Thus, third point हम calculate करेंगे number of Ca2 positive ions per unit cell. एक यूनिट सेल में जो number of Ca2 positive ions है that is 4. Number of F negative ions per unit cell that will be equal to 4 into 2 because all tetrahedral voids are occupied. Because जो आपके पास FCC unit cell होती है इसमें जो number of tetrahedral voids होते हैं that is simply equal to double the number of atoms present in a unit cell. 4 into 2 that will be 8. Third point, this is the fourth one. Ratio of Ca2 positive ion and F negative ion. That will be equal to 4:8. 4:8 means 1:2. Thus, इसका जो स्ट्रक्चर है that is AB2. AB2 that means A जो कैटाइन है that is 1, anion is 2. Thus, it is AB2 type ionic compound. Last point is the coordination number. Coordination number. जो Ca2 पॉजिटिव आयन है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है that is 8. और जो F नेगेटिव आयन है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है that is 4. That means its coordination number is 8:4. This is the structure of AB2 type ionic compound or CaF2 structure. पहला इसमें CaF2 structure. Ca2 positive ion जो है they form the closed packing FCC or CCP. Second point जो है जो हमारे पास anions होते हैं that is F negative. They occupy all tetrahedral voids. Number of Ca2 positive ions per unit cell will be 4 और जो number of F negative ions per unit cell है that will be 8. Thus जो ratio है that is 4:8 or we can say 1:2. इसका जो formula है that is simply I missed it there. जो इसकी formula है that is equal to CaF2. Coordination number is simply equal to 8:4. Now अब हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दैट इज टर्म्ड एज एंटी. दिस इज कैल्शियम फ्लोराइड और फ्लोराइड स्ट्रक्चर. कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर और CF2 स्ट्रक्चर. अनदर इज टर्म्ड एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में यहां पे जो Ca2 पॉजिटिव आयन्स है दे फॉर्म द क्लोज पैकिंग. वहां पे एनाइनस क्लोज पैकिंग बनाएंगे. यहां पे एनाइनस ऑक्यूपाई करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. वहां पे कैटाइन ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड. यहां पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ कैटाइन्स दैट इज इक्वल टू 4. वहां पे एनाइन्स होंगे 4. यहां पे एनाइन्स 8. वहां पे कैटाइन्स 8. यहां पे रेशियो 4:8. वहां पे 8:4. कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 8:4. वहां पे 4:8. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. नाउ वी विल स्टार्ट विद अनदर वन दैट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. दैट इज Na2O. यहां पे O नेगेटिव इट इज O2 नेगेटिव. इसका साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव. एज अ रिजल्ट O2 नेगेटिव जो है इट विल फॉर्म द क्लोज पैकिंग. thus यहां पे Ca2 पॉजिटिव के बदले है O2 नेगेटिव. इट फॉर्म्स द क्लोज पैकिंग. F नेगेटिव ऑक्यूपाइज द ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट इज इन केस ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर. यहां पे Na2 पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स. फिर हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव per unit cell because Ca2 positive जो है it forms the closed packing. बट अगर आप इसकी बात करेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, यहां पे O2 नेगेटिव आयन form the closed packing. So number of O2 negative ions per unit cell will be 4. वहां पे F नेगेटिव आयन ऑक्यूपाई करते थे टेट्राहेड्रल वॉइड्स. यहां पे Na occupy the tetrahedral voids. That means जो Na positive ions होते हैं per unit cell that will be 8. रेशियो ऑफ Ca2 पॉजिटिव यहां पे आएगा रेशियो ऑफ O2 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव. दैट विल बी 4:8. दैट मींस 1:2. thus it is AB2 टाइप और A2B टाइप आयोनिक कंपाउंड. जो इसकी फॉर्मूला है दैट इज Na2O
कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहां पे है दैट इज इक्वल टू 4:8. दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दैट इज आउट ऑफ 2 आयन्स, जिसका साइज ज्यादा होगा दैट विल फॉर्म द क्लोज पैकिंग, जिसका साइज स्मॉल होगा दैट विल ऑक्यूपाई द voids. Then you can proceed with the different structures.